तो आप सभी का स्वागत है सक्षम सोसाइटी के भारत खोज के सीरीज के एक और नए सेशन में। बिफोर स्टार्टिंग लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर एनजीओ सक्षम सोसाइटी। जो सक्षम सोसाइटी की स्थापना है वो 2022 में उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कॉज को सर्व करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। और जैसा कि जो भारत का संविधान है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, और समाज और सक्षम सोसाइटी का मानना है कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है, वो आर्थिक न्याय के द्वारा ही संभव है। और इस प्रयास में हम अलग तरीके से अपनी तरह से कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की, जैसे कि रोजगार रोजगार के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, जिसमें हम मिस कम्युनिकेशन और अदर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जैसे कि कॉल सेंटर से अकाउंटेंसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते आए हैं। और जो सक्षम सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं सक्षम भारतीय से एनजीओ के, जो कि 2000 में स्थापना हुई थी जिसकी। सो ये हमारा एनजीओ का इंट्रोडक्शन था। सो जैसा कि अब हम मणिपुर की बात करने वाले हैं, और आप सभी को मणिपुर के बारे में रिसेंटली जो हाइलाइट्स हैं पिछले साल में मिलती आई, जिस तरह की वायलेंस वहाँ पे इरप्ट हुआ, और जो कि काफी वाइड स्प्रेड था, और काफी लोगों को पता चला कि मणिपुर किस तरह का स्टेट है। सो लेट्स have directly conversation upon that from our chief guest. And for introduction of our distinguished speaker, I'd like to invite Radha Arya. Over to you, Radha. You, Abhishek ji. Good evening, everyone. Here is a small, you can say there is an introduction of Vijay Lakshmi Barara ji. And Vijay Lakshmi Barara is a professor of sociology in Royal Global University, Guwahati. And she has research experience of nearly 35 years in Northeast India in the field of cultural anthropology, climate adaptability, and analysis of local level institutions. Besides other issues like gender and ethnicity, she has around 40 publications in journals and chapters in edited books of reputed publications. And she has authored a book titled Politics, Society, and Cosmology in India's Northeast, published by Oxford University Press. Her book titled Politics, Society and Cosmology in India's Northeast is the result of her intensive fieldwork in Manipur. Besides that, she have taught in Manipur University for 12 years in Center for Manipur Studies. She has written articles on Manipur Persistis, the vigil groups called Mira Pebi, and on the structure and history of IMA, Cathal, the women's market. It's over to you, Abhishek ji. Thank you. And one more introduction, I think that got missed. Vijay Lakshmi ji is the daughter-in-law of Manipur, and for the last 34 years, she is married to a Manipurian. I'm not going further. Yeah. Okay, please. Can I? Vijay No, Lakshmi? no, no, no. Yeah, No, that's okay. the reason. Okay. Yeah, yeah. Abhishek. Okay. So now I'd like to request from our distinguished speaker to start the session. Okay, okay. Yeah, so yeah, as I was told, the topic, given is, can we share the slide, the PPT? Are we sharing it? Yes, ma'am, I'm just sharing it. Actually, you're sharing it. Okay. Mm. So should I start? Okay. Yes, ma'am, you may start now. It is visible Okay. on the screen as Yeah, well. it's visible on the screen. Yeah, so as I was told, we need to speak today on socio-political aspects of Manipur. As I introduce Abhishek, introduced Manipur as a conflict zone right now. But before understanding that conflict, and probably I will not be discussing on that because it has not really been comprehended as to kya ho raha hai Manipur mein. So I wouldn't like to comment on it. But nevertheless, if you want to understand it, so you need to understand the historical and social and cultural aspects and the rootedness of Manipur, ये कि ये कहाँ से ये हो रहा है, तो उसके लिए
सॉरी, मैंने अंग्रेजी में शुरू कर दिया, आदत पड़ी हुई है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मणिपुर एक छोटा सा, देखो ना इंडिया कितना बड़ा है, और एक कोने में ये मणिपुर है, बहुत छोटा है। और ये जो मणिपुर है, ये आप जो थर्ड डायग्राम देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। तो येलो में मणिपुर है, और बाकी जगह में वो छह राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो उस उनका हिस्सा है मणिपुर। और आप ये देखिए कि जब ये इंडिया बांग्लादेश के ऊपर एक छोटा सा सिक्किम है, उसको भी आजकल नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा माना जा रहा है। और वो एक जो पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देखिए, एक छोटे से एक एक लैंड से जुड़ा हुआ है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। इसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक, जैसे चिकन की एक नेक होती है ना, चिकन की, जब अगर आप लोग चिकन खाते हैं तो ऐसे, तो उतना उस तरह का ये वो है, शेप है इसका। पर इतनी सी जोर से ये इंडिया का हिस्सा है। और मणिपुर भी पार्ट ऑफ ये इंडिया का हिस्सा इसके थ्रू है। और मणिपुर का बॉर्डर लगता है म्यांमार से, जिसको पहले बर्मा कहते थे। और उसके ऊपर में चाइना आ जाता है, और नीचे में एज यू कैन सी वो छोटा सा इंडिया जैसा वो बांग्लादेश है। तो ये सब चारों तरफ से हम लोग इस तरह से घिरे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में। और मणिपुर का बॉर्डर सिर्फ म्यांमार से जुड़ता है। और क्योंकि आप मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको म्यांमार के भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर वो मेरा अभी विषय नहीं है। पर वहां पर भी आर्मी रूल है, आर्मी जनता का रूल है। और ये कहा जाता है कि वो बहुत ही मतलब बहुत मार क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, क्रूर एक तरह का वो अभी चल रहा है वहां पर। और मार लोगों को मारा जाता है, ह्यूमन राइट्स किसी के नहीं है। तो वो हम लोग उस बॉर्डर कंट्री को के साथ लगे हुए हैं। तो कभी कभी उस बर्मा में जो हो रहा है, उसका इफेक्ट मणिपुर में आ जाता है। तो ये जो साइड में जो बॉर्डर लगा हुआ है मणिपुर का, कहाँ चला गया, जो साइड में मणिपुर का बॉर्डर लगा हुआ है। हाँ, हाँ, ये जो नहीं नहीं, गो बैक। हाँ, ये जो इंडिया के जो नक्शा बना है ना, उसके साइड में जो बॉर्डर लगा हुआ है वो बर्मा के साथ जुड़ता है। तो एनीवे, तो हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अच्छा। तो एक्चुअली ये उल्टा पुल्टा हो गया, इसका नेक्स्ट में जाइए अभिषेक, इसके नेक्स्ट में जाइए। हाँ, अच्छा, ये पहले करते हैं। तो पहले ये बता दूं कि जो मणिपुर है, मणिपुर में कैपिटल उसका है इम्फाल। और जो नहीं, वो कहाँ चला गया, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। अरे नहीं, एक मिनट, हाँ, वो गायब हो गया। एनीवे, तो मैंने वो प्रोफाइल का एक स्लाइड लिखा था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बट डजंट मैटर। तो जो मेती जो मणिपुर है, उसका कैपिटल है इम्फाल। तो जो इम्फाल है वो एक बहुत बड़ी वैली है, वैली है, और सारे चारों तरफ पहाड़ है। तो जो इम्फा वैली है, वो कैपिटल है मणिपुर की। और वहां पर सबसे ज्यादा लोग मैती के रहते हैं, और जिनका मेजॉरिटी धर्म वैष्णव है, राधा कृष्ण। वो भी मैं बाद में बताती हूँ डिटेल में क्या है। और कुछ लोग वैष्णव ना होके जो पहले के इंडिजिनस रिलीजन है, उसको उसको सनामही कहते हैं, या कुछ लोग उसको मैती रिलीजन भी कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, वो कुछ लोग उनको बिलोंग करते हैं। और जो फिर जो पहाड़ हैं, पहाड़ में जो एक जगह है उखरुल। उखरुल में ज्यादातर तांगखुल ट्राइब रहती है। और उसके बाद जो कबुई है, वो तमिंगलोंग
ट्राइब जगह पे रहती है। और जो माओ और मरिंग है वो क्या कहते हैं, एक माओ जगह ही माओ है, नागालैंड की तरफ जाते हुए। मरिंग भी उसी साइड में रहते हैं। तो इनकी अपनी अपनी भाषा है, इनका अपना अपना कल्चर है, इनके अपने अपने कस्टमरी लॉज हैं, और इनके अपने अपने गवर्निंग सिस्टम्स हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। और पर कुछ इनमें से जैसे कबुई हैं और जैसे मरिंग हैं, इनमें से कुछ ये लोग भी इंडिजिनस, अपने इंडिजिनस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और जो माओ हैं वो कुछ हद तक वो है कैथोलिक है। बाकी जो क्रिश्चियंस हैं वो अमेरिकन बैप्टिस्ट हैं। तो ये डिफरेंट तरह के क्रिश्चियंस फेथ्स हैं। तो thankful majoritarily अमेरिकन बैप्टिस्ट है। और फिर कुकीज आ जाता है। कुकीज जो जिनके साथ आजकल मेथीज का लड़ाई हो रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात, आसिन साहब ने ये छेड़ा है लड़ाई का। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जो कुकीज हैं उसमें जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें ओल्ड कुकीज आर कंसिडर, वो इंडिजिनस मानते हैं। और जो बाकी उसके बाद जो आ रहे हैं उनको न्यू कुकीज कहते हैं। और उनको हम लोग और गवर्नमेंट भी रिकॉग्निशन देती है कि वो इंडिजिनस हैं, कि वो यहीं के पैदा हुए हुए लोग हैं। उनका माना जाता है कि वो बर्मा से या मतलब बाहर से आए हैं। पर वो भी मेजोरिटरली क्रिश्चियंस हैं। तो कुकीज में से जैसे पाइते हैं, पाइते आर ओल्ड क्रिश्चियंस। और चौथे ये लोग भी ओल्ड क्रिश्चियंस हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 ट्राइब्स हैं अमंग कुकीज। और नागाज में भी तांकुल कबुई माओ मरिंग सिर्फ नहीं है, और भी बहुत छोटे 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 ट्राइब्स हैं। ओके, सो नाउ मेथीज की तरफ आते हैं। मेथीज का जो हिस्ट्री है जिसे कहते हैं, मेथीज वैली में रहते हैं। और मेथी का सिर्फ कंपेरेटिवली तो जितने भी अदर कम्युनिटीज हैं, मेथीज का एस्टैब्लिश्ड स्टेट स्ट्रक्चर था। इनका किंग था, किंग का किंगडम था, और उसके काउंसिल्स थे, और उनका एक गवर्निंग मॉडल था। और डिस्ट्रिक्ट्स में बांटे हुए थे इम्फाल को। और जो मैती किंग्स था उनका रिलेशन नागा और कुकी ट्राइब्स के साथ एक तरह सा थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट मान लो। मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस रखते थे। क्या जो मैती किंग्स थे वो पूरी तरह से नागाज और कुकीज के चीफ्स को रूल नहीं करते थे। तो आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था बिटवीन मैती किंग, जो एक एस्टैब्लिश स्टेट स्ट्रक्चर था, और नागा और कुकी चीफ्स के साथ। और इनफैक्ट इसका एक फेस्टिवल भी मनाते हैं हर साल, जिसमें मेइतेज के किंग के लिए नागा चीफ्स और कुकी चीफ्स फिर कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, और रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम सब एक हैं। और हाँ हाँ हाँ, तो मेरा इसको कहते हैं मेरा होचुंगबा। तो उसके बाद बट अच्छा, फिर कमिंग बैक टू मेती इंडिजिनस सिस्टम। मेती इंडिजिनस जो रिलीजन है वो उसको कुछ लोग सनामही कहते हैं। पर सनामही उनका एक, उनमें जो जितने भी मल्टीपल गॉड्स हैं उनमें एक गॉड है सनामही। सनामही जो है वो सबके घर के अंदर रखने वाला, उसको हाउस होल्ड डेटी कहते हैं। सबके घर के अंदर रखने वाला भगवान है। और उसको हर रोज फैमिली जो है वो हर एक फैमिली उसकी पूजा करती है। उसके अलावा जितने भी पहाड़ हैं, उसको माना जाता है कि जो पहाड़ हैं वो अ, हमारी रक्षा करने वाले भगवान हैं। और उनकी भी टाइम टाइम पे उनकी भी पूजा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से है नोंगपोक निंगथौ। नोंगपोक निंगथौ जो बर्मा की तरफ जाते हुए रास्ता है, वहां पर एक बहुत बड़ी लेक है, उसका नाम है लोकटाक लेक। लोकटाक लेक इज कंसिडर्ड एशियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो वहां पे जो पहाड़ है, उस पहाड़ को
नोंगपोक निंगथो कहते हैं। उसके बाद तो वहां तो उसके बाद जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो इनके प्रीस्ट्स हैं, उनको हम लोग माईबी और माईबा कहते हैं। माईबी और माईबा जो होते हैं, माईबी होती है जो औरत होती है, और जो माईबा होते हैं वो आदमी होते हैं। पर जब भगवान की पूजा होती है, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, तो प्राइमरीली माईबी इसकी पूजा करते हैं, और उसको कहते हैं लाय हराओबा। लाय हराओबा मतलब होता है, लाय मतलब भगवान, हरोबा मतलब भगवान को खुश करने वाला फेस्टिवल, उसको कहते हैं लाय हरोबा। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अराउंड 13 सेंचुरी में क्या हुआ कि बर्मा के जो किंग थे, जो उनको उस वक्त शान, एक किंगडम था वहां पर, शान डायनेस्टी, वहां के जो राजा थे, उन्होंने 13 सेंचुरी में किंग कायम्बा को उन्होंने एक विष्णु की मूर्ति दी, प्रेजेंट किया। हाँ, तो उसके बाद से माना जाता है कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत ये हिंदुइज्म का जो इफेक्ट था धीरे धीरे आने लग गया। अभी भी ये जो मूर्ति है, ऑफ कोर्स अभी मूर्ति तो नहीं है, पर मूर्ति जिस छोटे से एक मंदिर में रखी गई थी, उसको अभी भी इस जगह को विष्णुपुर कहते हैं। विष्णुपुर मतलब जहां पर विष्णु को रखा गया था। तो ये किंग कयाम्बा की स्टोरी है। पर एक्चुअली में हिंदुइज्म एस्टैब्लिश हुआ 17 सेंचुरी में एज अ स्टेट रिलीजन। तब राजा ने डिक्लेयर किया कि सब लोग हिंदू हो जाएंगे, सब लोग हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कन्वर्ट करने वाले कौन थे? बंगाल से आए हुए पंडित, वो लोग क्या कहते, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। और वो लोग आके उन्होंने फिर सबको कन्वर्ट करना शुरू किया। और उनमें इनका जो पंडित था उसका नाम था शांतिदास गोसाई। ये 18 सेंचुरी में ये प्रोसीजर शुरू हुआ। तो उस वक्त बड़ा मतलब काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि सडनली इमेजिन करिए कि आपको कोई आपका राजा आके बोल दे आप वो रिलीजन को छोड़ दो नया रिलीजन अडॉप्ट करो। तो आपको भी सडनली लगेगा ना कि ये क्या, ये बिकॉज रिलीजन जो होता है, जो धर्म होता है, उस वो आपको आप बचपन से बिलीव करते आ रहे हैं कि इन चीजों पे सडनली एक राजा आके बोल दे कि नहीं, आप अभी सना मही वगैरह को भूल जाओ और राधा कृष्ण को फॉलो करो। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, तो उसके तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कुछ लोगों ने तो चुपचाप मान लिया, पर कुछ लोगों ने क्या किया कि, पर उसने भी शांतिदास गोसाई ने आके क्या किया कि उसने जितने भी पहले के, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये बता दूं कि जो मैती हिस्ट्री है ना, जो मैती कल्चर है, इसमें जैसे हमारे पुराण होते हैं ना, वेदा और पुराण, वैसे ही मणिपुर के मैतीस के उनको पुयास कहते हैं। तो बहुत सालों से हम जो मैती हिस्ट्री है वो लिखित लिखित है, ओरल नहीं है सिर्फ। तो वो सारी जो पुयास थे, वो किताबें थी, वो शांतिदास गोसाई और उनके लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उसमें और रोष आ गया। तो जो उस समय के जो पंडित थे, जो उस समय के इंडिजिनस पंडित थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया और उन्होंने श्राप दिया शांतिदास गोसाई को कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो जो आप जो हिंदू मंदिर बना रहे हो राधा कृष्ण का, और अगर आप उस जो खंबे हैं उनको तोड़ोगे तो उनमें से फिर खून आएगा। और जो शांतिदास गोसाई है वो उसको कह दिया कि आप वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, लेप्रेसी, लेपर बन जाएगी, लेपर, कोढ़ कोढ़ हो जाएगा आपको। तो ऐसा माना जाता है कि उसको सच में कोढ़ हो गया। और जिसने ये श्राप दिया था वो एक बहुत ही फेमस इंडिजिनस स्कॉलर है, उसका नाम है खोमनांग थाबा। खोमनांग थाबा, और उसने ये श्राप दिया था। तो उसके बाद फिर शांतिदास गोसाई ने माफी मांगी, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, हिंदुइज्म भी आएगा, पर जो पहले का रिलीजन है, जो सनामही और जो फॉरेस्ट डेटीज और जो पहाड़ों के डेटीज, इन सब का जो रिलीजन है वो भी साथ साथ में इंक्लूड होगा। तो उस तरह से
स्लोली फिर मेइतेई का जो हिंदुइज्म है, वो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इट वाज अ मेइतेई ब्रांड ऑफ हिंदुइज्म। मतलब देखिए, इसमें ना इंटरेस्टिंगली, जैसे हम लोग कहीं पर भी हिंदू होते हैं, कहीं पर भी हम लोग वी बिलोंग टू अ कास्ट, एक कास्ट को बिलोंग करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पर मैती जब कन्वर्ट हुए तो क्या कहते हैं, तो कौन कौन शूद्र में कन्वर्ट होगा? तो तो excuse me, तो कौन शूद्र में होगा? तो इसलिए सभी लोग क्षत्रिय बन गए, सभी लोग क्षत्रिय बन गए। और जो उसके बाद जो सोशल स्ट्रक्चर बना कि वो सब क्षत्रिय बन गए, जो ब्राह्मण्स आए थे बाहर से वो ब्राह्मण्स रहे। और फिर जो उन्होंने हिंदुइज्म नहीं एक्सेप्ट किया, उनको राजा ने कहा कि उनको देश निकाला दे दिया। तो वो पहाड़ों के साथ साथ में उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली। और फिर उनको कहा गया कि वो लोग, तो आजकल की टर्मिनोलॉजी में वो लोग शेड्यूल कास्ट हैं, पर उनको उनकी टर्मिनोलॉजी में उनको कहते हैं लोई, LOI, लोई कम्युनिटी। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और धीरे धीरे फिर ब्राह्मण्स को, जो वो तो सिर्फ लड़के आए थे, आदमी आए थे, तो किंग ने उन लोगों को मैतेई औरतें दे दी शादी करने को। तो इस तरह से हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर बना कि ब्राह्मण्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड, देन मैतेई जो पहले से इंडिजिनस लोग थे, फिर जो मैतेई ने, इन्होंने हिंदुइज्म नहीं अडॉप्ट किया, लोइस। तो और उसके बाद उसके बाद एक किंग गरीब निवास थे 18 सेंचुरी में। उनकी लड़ाई हुई असम के अहोम किंगडम से। तो उस लड़ाई में उन्होंने असम के जितने भी कुछ सोल्जर्स थे, वो ज्यादातर उनमें उसमें मुसलमान थे। तो उनको एज ए स्लेव उनको मणिपुर लेकर आए। और फिर उनको उनको भी एक जगह दी रहने के लिए, और उनको अलाउ किया कि वो अपना खुद का रिलीजन फॉलो करे। और उनको भी मैतेई औरतें दे दी शादी करने को। ठीक है, तो इसलिए अदरवाइज उनका ओरिजिनल नाम पामहाइबा है, पामहाइबा। पर गरीब निवास टाइटल इसलिए उन्होंने, जो मुस्लिम स्लेव्स थे, अब स्लेव्स के साथ कोई इतना अच्छा थोड़ी व्यवहार करता है, पर गरीब निवास ने किया। और इसलिए उन्होंने पमहिबा का नाम गरीब निवास रख दिया। गरीब निवास जानते हैं ना, जो गरीबों की देखभाल करता है। अकबर के लिए भी कहते हैं गरीब निवास। तो ये गरीब निवास 18 सेंचुरी का बहुत ही फेमस किंग है। और उसके राज्य में काफी सारी ऐसे कल्चरल और रिलीजियस चेंजेस आए। उसके बाद किंग भाग्यचंद्र आए, आफ्टर गरीब निवास भाग्य चंद्र आए। और भाग्य चंद्र तो पूरा का पूरा, उस वक्त एक्चुअली गरीब निवास के टाइम में हो रहा था कि राम को फॉलो करे कि कृष्ण को फॉलो करे, कंफ्यूजन सा था, लोग सोच रहे थे ऐसे करके। बट भाग्य चंद्र जो किंग है, उन्होंने आके एकदम राधा कृष्ण का एकदम एस्टैब्लिश किया, मंदिर एस्टैब्लिश किए। और उन्होंने वो उनकी जो राज्य, उनकी जो टाइम था राज्य करने का, उसको लोग कहते हैं कि वो एक रेनेसा था, कल्चरल रेनेसा। क्योंकि भाग्यचंद्र ने रास लीला, आप जानते होंगे मणिपुर का बड़ा फेमस रास लीला होता है। भाग्यचंद्र, किंग भाग्यचंद्र ने उसको शुरू किया, उसको बनाया। पर ये कहते हैं कि जो रासलीला है, वो जो इंडिजिनस लाइहरोबा है, अ, उसका थोड़ा बहुत उसके 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 जो एक्शंस है, उसके जो स्टेप्स हैं, डांस के स्टेप्स हैं, उसको कॉपी किया है। तो एनीवे वो अलग बात है। तो इस तरह से तो बट ये बहुत जो ओरिजिन मिथ्स है मैते का, जो ओरिजिन मिथ्स है मैते का, तो उसमें ये बहुत बार कहा जाता है कि मैथेज और नागा स्पेशली, यू नो ऐसे लगता है जैसे नागाज बड़े भाई थे और मैथेज छोटे भाई थे। एक मिनट, हाँ। तो इनको ओरिजिन मिथ्स कहते हैं कि शुरू में कैसे लोग आए। तो ये भी बड़ी सारी मिथ्स हैं कि ऑफ कोर्स हिंदुइज्म से बहुत इफेक्टेड है। कि जैसे
आपने सुना होगा गणेश और कार्तिकेय का लड़ाई में उनके कंपटीशन था कि कौन राजा बनेगा। और वो फिर जो गणेश है वो राजा के शिव के चारों तरफ घूम लिया और फिर उसको शिव ने राजा बना दिया। तो इसी तरह से ये भी मिथ है मणिपुर में कि जो बड़े दो भाई थे, और जो मेइतेई थे, सॉरी, पाखंबा थे, और एक सनामही थे। तो सनामही को क्या कह दिया, दुनिया घूम के जो सबसे पहले वापस आएगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। तो तो उस वक्त वो जो माँ थी उसने पाखंबा को कहा कि तुम राजा के जो थ्रोन होता है उसके चारों तरफ घूमो। तो ऑब्वियसली वो उसके चारों तरफ घूमेगा तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो राजा बन गया। तो उसके बाद सनाई में गुस्सा हुआ तो उसको राजा ने फिर हर एक घर का भगवान बना दिया। ये भी एक कहानी है। पर मेइते और नागा का ये कहानी है कि पहले पूरा जो इम्फाल वैली है, एक्सक्यूज मी, अगर आपको कहीं पर कुछ समझ ना आए, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज बीच में मुझे रोक सकते हैं। अच्छा, तो अ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़ी कहानी बता रही हूँ, इसलिए कभी कभी मैं गड़बड़ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए आप प्लीज मुझे टोक दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ ना आए। तो नागा, स्पेशली तांखुल नागा के और मेइती के बारे में कहा जाता है कि पहले पूरा जो वैली था, जो इम्फाल है, पहले पूरा पानी से भरा था। तो जो सबसे पहले फिर क्या जो हिंदू रिलीजन है उसने कहा कि शिव पार्वती ने वहां डांस किया। तो जो सबसे पहले जहाँ पर लैंड दिखाई दिया उसको कहते हैं कंगला। कंगला जैसे किला होता है ना, तो वो किला बनाया गया मेइती किंग का उसको। तो तो कहते हैं जब ऐसे हुआ तो जो दो भाई थे वो पहाड़ से नीचे आए, और ये माना गया कि जो छोटा भाई है वो जो प्लेन है वहां पर ज्यादा आसानी से रह सकते हैं, पहाड़ में दिक्कत होती है। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं पहाड़ में रहता हूँ, और छोटे भाई को कहा कि तुम वैली में रहो। और इस तरह से बड़ा भाई नागा तांगखुल बन गया और मेइतेई वैली में बन गया। तो इस तरह की बड़ी कनेक्टिंग विथ्स है। जैसे जब मेइतेई राजा का कॉरोनेशन होता है, जब वो राजा राजा बनने के जितने भी वो होते हैं रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें तांखुल नागा के जो घर का स्ट्रक्चर है, ऐसे होता है, ऐसे होता है घर का स्ट्रक्चर। घर का स्ट्रक्चर वो इंक्लूड होता है, जो तांखुल शॉल होती है वो उसको पहन के रानी रानी बनती है। और बहुत सारे ऐसे कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं जो मैतेई कोरोनेशन में भी तांखुल कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि एक ही सोसाइटी थी, वो धीरे धीरे वो थोड़े अलग हो गए। और इसी तरह से कबुई, कबुई भी मतलब ज्यादातर ये लोग क्रिश्चियन नहीं है, ये लोग अपना धर्म मानते हैं। और पर ये लोग क्योंकि तमेंगलोंग में रहते थे, वो बहुत दूर है इम्फाल से। अभी भी मॉडर्न गाड़ी के बावजूद तो वहां 7 घंटे लगते हैं इम्फाल से तमेंगलोंग पहुंचने, बिकॉज सड़क बहुत खराब है। तो इसलिए कम्युनिकेशन ज्यादा रहा नहीं। तो इसलिए उनकी कोई जॉइनिंग मिथ्स नहीं है, ना ही माओ मरेंग की है। एनीवे, और कुकीज के साथ तो बिल्कुल कोई मिथ नहीं है मेथीस की। पर ये लोग कहते हैं कि ये लोग देश से आए थे। पर अनदर नाउ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये होता है कि जो नागाज हैं, ये कटिंग अक्रॉस सब नागाज, तांखुल, कबुई, माओ मरिंग सभी, जो इनका गवर्निंग सिस्टम है, जो इनका वो नहीं, कम प्लीज आई टेल यू व्हेन यू हैव टू चेंज। जो उसका सिस्टम है वो है कि विलेज काउंसिल्स होते हैं हर एक विलेज के, और हर एक विलेज डेमोक्रेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है, और इनका दे आर वेरी अटैच टू देयर लैंड। अच्छा, तो और इनके इलेक्शंस होते हैं। हर एक क्लैन, क्लैन जैसे होते हैं ना, हमारे यहाँ गोत्र होते हैं ना, उसी तरह से क्लैन, इनका हर एक क्लैन का दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स इनका विलेज काउंसिल मेंबर बनता है। और जो चीफ होता है वो हेरिडिटरी चीफ हर एक गांव का होता है। और जैसे मेथीस का तो आपने मैंने बता ही दिया इतना डिटेल में कि राजा था।
और वो राजा, ये मैतीस भी 7 क्लैंस में डिवाइडेड है, और जो राजा है वो हमेशा जो निंगथौ ट्राइब है, निंगथौ क्लैन है, उसमें से राजा बनता है। और उसमें से भी जो महाराज कुमार हैं, उनके जो वंशज हैं, उनके या फिर राजकुमार, अगर महाराज कुमार में से कोई वंशज नहीं है, या इंटरेस्ट एकदम ठीक नहीं है लोग बच्चे, तो फिर राजकुमारों में से राजा बनते हैं। कुकीज का काफी डिफरेंट है। कुकीज का जो गवर्निंग सिस्टम है वो ये है कि जो चीफ है उसके एकदम जैसे हिटलर होता था ना, एकदम तानाशाही, तानाशाही होता है। तो अगर जैसे अगर उसने गांव बनाया, गांव से अभी ये लोग बेसिकली नोमैडिक हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये जैसे एक चीफ बना, उस एकदम उसका सारा जो विलेज लैंड है वो उसका है। अगर सपोज आप या हम में से कोई किसी का चेहरा या कोई कारण से वो हम लोग पसंद नहीं आए चीफ को, कुकी चीफ को, तो हमको कह देगा कि आपको निकाल देगा गांव से, और हमको उसी वक्त निकलना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, जब हम निकले तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम अपना छोटा सा एक गांव बना के हम उसके चीफ हो जाते हैं। तो इस तरह से कुकीज लैंड के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है। वो लोग ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं। और इसलिए ये भी आजकल का जो लड़ाई का कंटेंशन है कि उन्होंने सारे पहाड़ पर ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसलिए भी मतलब ये भी एक कारण है आजकल की लड़ाई का। सो ये गवर्निंग सिस्टम, या प्लीज चेंज द स्लाइड ना। ओके, नाउ ये हो गया सोशल स्ट्रक्चर। और ये आ, क्या कहते हैं, नहीं, लेट्स गो बैक टू फेस्टिवल्स एंड कल्चर। उससे पहले वाला अभिषेक। हाँ, तो मैंने जैसे कहा आपको कि फेस्टिवल्स होते हैं, तो जो कुकीज और नागास हैं, ऑफ कोर्स क्रिसमस उनका मेजर फेस्टिवल होता है, पर उनका खेती बाड़ी से संबंधित भी फेस्टिवल होते हैं, वो अभी तक वो बहुत ही पॉपुलर है। तो ये जो पहली आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है ये वाली, ये है वो लाल हरोबा की जो मैंने बताया था। और ये जो व्हाइट में है, ये ट्रेडिशनल प्रीस्टेसेस हैं, ये ट्रेडिशनल प्रीस्टेसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने बताया था रासलीला, ये होली के वक्त होती है। और ये जो नीचे पिक्चर है, ये भी होली का पिक्चर है। और ये मणिपुर की होली बहुत वर्ल्ड फेमस है। इसको याओशॉन्ग कहते हैं, और ये 5 दिन तक चलती है। और गोविंद जी टेम्पल इसका सेंटर पॉइंट है, जहाँ से ये फेस्टिवल शुरू होता है। और ये रासलीला सारे 5 दिन मंदिरों में होती है, जिसमें जो कृष्ण भगवान है वो एक छोटी बच्ची होती है, या फिर ज्यादातर छोटी बच्ची होती है। और जो राधा बनती है वो एक ग्रीन, आपने देखा, ये देखा, ये एक ग्रीन ग्रीन कलर का पहना हुआ है ये। और बाकी जो गोपियां हैं वो लाल रंग का ये पहनती है, ठीक है। इनको इस ड्रेस को कहते हैं पोलोय, POLOI, पोलोय। तो ये रासलीला जो है ये वर्ल्ड फेमस है। ये शुरू की थी भाग्यचंद्र ने। और वो जो 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 उसके बाद जो होता है, जो गोविंद जी टेम्पल में काफी मंडलियां आती हैं, कीर्तन मंडलियां। और वो गोविंद जी टेम्पल में जो प्रीस्ट होते हैं, उनके उनसे वो पिचकारी लेके वो उन पे मारते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर, कॉलोनी में जाके, हर एक घर में जाके भजन गाते हैं राधा और कृष्ण के। ये 5 दिन तक चलता है। तो उसके बाद हमारा जगन्नाथ यात्रा भी मनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जगन्नाथ यात्रा जैसे उड़ीसा में होता है ना, वहां तो खैर बहुत ही बड़ा रथ होता है। तो हमारा इतना बड़ा नहीं होता, फिर भी काफी बड़ा होता है। ये गोविंद जी टेम्पल से शुरू होता है। उसके इसको भी लोग खींचते हैं, इसको कहते हैं कांग चिंगबा। कांग होता है रथ, और चिंगबा मतलब खींचना। और हर एक लोकेलिटी में भी छोटे 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 रथ बनाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। वो रथ बनाते हैं और वो हर एक लोकेलिटी, हर एक घर में जाते हैं। और हर एक घर में वो लोग जगन्नाथ को फ्रूट्स और उस हर एक घर में जाके उसकी पूजा करते हैं, जो पंडित होते हैं लोकेलिटी के। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये जो पिक्चर है, ये है
कुत फेस्टिवल, जो कुकीज का फेस्टिवल है, इसमें मिस कुत जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, उस ऐसे मिस कुत डिक्लेयर की जाती है। और ये भी एक एग्रीकल्चर सीड सोइंग, जब जब बीज बोते हैं उन दिनों में ये फेस्टिवल मनाते हैं। और नीचे जो आप सबसे देख रहे हैं, इसको ये कबुई ट्राइब का फेस्टिवल है, इसको गंगनाइक कहते हैं। और ये भी सीड सोइंग फेस्टिवल है। तो क्या कहते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित जो फेस्टिवल है, इवन दो ये लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, पर ये खेती बाड़ी से संबंधित जो फेस्टिवल्स हैं, ये अभी भी पूरे मणिपुर में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और सिर्फ कबुई और कुकी नहीं, ये मैतीज भी इनके साथ मिलके बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। इनफैक्ट काफी मैती लड़कियां भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी गो टू ओके विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये जो है विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, गो बैक, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने अलग से क्यों लिया? मैंने इसलिए अलग से लिया क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ मणिपुर का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विमेन्स, औरतों की संगठन, औरतों के संगठन। और इसमें सबसे ऊंचा और सबसे पॉपुलर है मेरा पाइबीस, मणिपुर। मैं सिर्फ मणिपुर की बात कर रही हूँ अभी। मेरा पाइबीस है। मेरा मेरा मतलब होता है मशाल, तो जो आग की मशाल होती है ना, और जो पाइबी होता है जिसने वो मशाल पकड़ी हुई है। इसलिए जो औरतें जो मशाल पकड़ती हैं उनको कहते हैं मेरा पाइबीस। नथी दोले। सो ये जो होती है मेरा पाइबीस, ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक एक तरह से समाज में एक ऑर्डर रखने का एक वो बनी औरतें हैं। ये लोग जब मणिपुर में बहुत फेमस था, बहुत मतलब फेमस क्या कह रही हूँ, बहुत ज्यादा था, ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा था। तो इन दिनों में हर एक घर में कम से कम एक ड्रग एडिक्ट होता था। और ये ड्रग ज्यादातर बर्मा के थ्रू आती थी। तो उन दिनों में मेरा पाइबिस ने रात रात में मशाल लेके गलियों में घूमते थे, और जो भी ड्रग एडिक्ट मिलता था उसको पीटते थे ताकि वो आगे से ड्रग ना ले सके। तो इनफैक्ट जो ड्रग एडिक्ट है वो कहते हैं कि हम लोग पुलिस से पकड़े जाए कोई बात नहीं, पर हम मेरा पाई भी उनको बहुत डर लगता था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मणिपुर में काफी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो भारतवर्ष से अलग होना चाहते थे, अपना इंडिपेंडेंट मणिपुर बनाना चाहते थे। तो इन दोनों में फिर आर्मी को बुलाया गया कि इनको कंट्रोल करो, और इनका बिकॉज वो लोग के पास भी गन्स होते थे एंड ऑल दैट। तो उन दिनों में क्या होता था कि आर्मी कभी कभी ऐसा करती थी कि काफी वो लोग इनोसेंट लोगों को, जिन्होंने कभी कोई हिस्सा नहीं लिया उस वैसी संस्थाओं में जो अलग होना चाहते हैं, उनको पकड़ के ले जाते थे। फिर वो उनको बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे। तो उन दिनों उस वक्त मेरा पाई भी जो है, वो लोग देखती थी कि उनकी कॉलोनी से कोई ऐसे इनोसेंट बच्चे को आर्मी ना उठा ले। तो वो भी काम करते थे। उसके बाद कई बार ऐसे होता था कि ये सभी जो नागा विमेन्स एसोसिएशन है, कुकी विमेन्स एसोसिएशन है, मेरा पाइबीज भी है, और जितने भी ट्राइब्स और कम्युनिटीज है इंटरेस्टिंगली मणिपुर में, सबकी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है। इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी भी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, औरतों के संगठन है। छोटी छोटी ट्राइब्स के भी औरतों के संगठन है। अगर इस तरह के संगठन नहीं है तो चर्च बेस्ड संगठन है, पर संगठन है, औरतों के संगठन है। तो ये लोग क्या कहते हैं, जब सपोज ये काफी लड़ाई हुआ, नागाज और मैतीज में भी काफी लड़ाई हुआ, बहुत बहुत ब्रूटल हुआ, लेट 90s की बात है। तो उन दिनों में नागा विमेन्स एसोसिएशन और मेरा पाइबीस, ये लोग अपने अपने अंडरग्राउंड के लोगों के पास जाके उनको समझाया कि आप ऐसा मत करें, काफी लोग मारे जा रहे हैं, काफी इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने कन्विंस किया, और इनका बहुत बड़ा हाथ है शांति लाने के लिए मणिपुर में। इसलिए इनको कहते हैं
कि पीस बिल्डर्स मतलब जो समाज में शांति लाते हैं। ये जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। और उसके मेरा पाइबिस के बाद आपने देखिए मैंने लिखा है इमा कैथल। इमा इज ये वो पढ़ रही थी IMA कैथल। इट्स नॉट IMA कैथल, इट इज इमा कैथल। इमा कैथल जो है, सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए। इमा इमा मतलब माँ, और कैथल मतलब मार्केट। तो जो इमा मार्केट है, जो माओ की मार्केट है, वो इम्फाल में ज्यादातर है। और यहाँ पर जो लोग जो औरतें, वो लोग अपना कपड़ा खुद बुनती हैं। और जैसे कुछ औरतें अपनी खेती बाड़ी लेकर आती हैं, जो सब्जियां होती हैं, और कुछ लोग ये मच्छरदानी बनाती हैं। तो ये जो औरतें अपनी अपनी चीजें बनाती हैं, ये लोग वहां पर इमा कैथल में आकर बेचती हैं। और ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है इमा कैथल। ये अभी नहीं बना है, और ये तब का बना हुआ है जब राजा महाराजों का रूल था। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन दिनों में इवन महारानी आके अपनी चीजें बेचती थी, और इवन अमीर अमीर लोगों की औरतें आके बेचती थी। तो इमा कैथल को प्योरली आप इकोनॉमिक टर्म से नहीं देख सकते कि हाँ मार्केट है। उस तरह से मॉडर्न मार्केट की तरह नहीं देख सकते। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। जैसे अगर आप जाएं तो आपसे कहेंगे कि चाय पीजिए, आपसे कोई बातें करेंगे, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब बातें होंगी। उसके बाद ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो आप ले लीजिए। और बाय द वे बार्गेन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये खुद बुनती हैं, इनके पास ज्यादा प्रॉफिट का गैप नहीं होता। तो जैसे अगर 200 रुपए का इन्होंने कुछ एक ड्रेस भेजा है, जो मैती वीमेन कहते हैं फनिक, नीचे वो लुंगी टाइप का होता है, उसको कहते हैं फनिक। तो अगर वो बनाया है 200 रुपए का, अगर हम कहें नहीं नहीं 100 रुपए का दो, ये कोई नहीं करता, वहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं करता। तो उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप थोड़ा कम कर सकें तो वो 5 रुपए कम कर सकते हैं, 10 रुपए मैक्सिमम कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं, उस तरह का नहीं है कि अगर बहुत प्रॉफिट मिल रहा हो, उस तरह का नहीं होता है। तो ये इमा मार्केट उस तरह पर अभी आजकल काफी ये लोग स्मार्ट हो गई हैं, और काफी स्मार्ट हो गई हैं। और ये अभी हिंदी में बात करना शुरू कर दिया है इन्होंने। जो बिकॉज मणिपुर में काफी टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो उन्हें इंग्लिश इंग्लिश में भी कुछ लोग औरतें बात कर लेती हैं, और कुछ तो एजुकेटेड है, तो इसलिए वो बात इजीली कर सकती हैं। और इन्होंने धीरे धीरे अभी कंप्यूटर भी सीखना शुरू किया है। तो ये आजकल काफी मॉडर्न हो गई हैं। पर इनके अलावा मणिपुर में ऐसी औरतें भी हैं जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। जो जो लोग वो मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन दिल्ली में, दूसरे का राज्यों में, इवन बाहर के देशों में। और ये ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग होता है, जैसे अचार बनाना, जैसे जैम बनाना, जैसे उस तरह की चीजों को। वो एक तो बहुत फेमस फर्म है, उसका नाम है मैरा फूड्स। मैरा जैसे मैंने आपको बताया मशाल, और मैरा फूड्स के नाम पे बहुत फेमस है। अगर आप गूगल करें तो ये अमेरिका में भी जा रहा है, आजकल बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह से कपड़ों के फैशन डिजाइनर्स बहुत हो रहे हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो फैशन डिजाइनर्स हैं, वो ज्यादातर हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कर रही है। ट्रांसजेंडर मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, ज्योतिका कैन यू हेल्प मी? या ट्रांसजेंडर से समझते हैं। अच्छा, Yeah, ओके। yeah. जो Okay, ट्रांसजेंडर है, Lakshmi, will you have we please conclude like it was ओ the इट्स टाइम, ओके yeah ओके 9:45 yeah. ओके ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट स्लाइड। सो क्या हुआ, ये एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 का बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इसमें जो प्रिंस टिकेंद्रजीत है, और थंगाल जनरल पौना ब्रजबासी, प्रिंस टिकेंद्रजीत और थंगाल जनरल जैसे हमारे शहीद भगत सिंह हुए, उसी तरह से इनको भी पब्लिकली ब्रिटिश ने हैंग किया आफ्टर, जब ये लोग ब्रिटिश से जो लड़ाई हार गए। और इसको कहते हैं खोंगजम पर्व। हर साल मनाया जाता है। 1891 से शुरू हुआ ये। 1891 में इनको इनका फांसी दी गई थी। और ये हर साल खोंगजम पर्व, खोंगजम में ये लड़ाई हुई थी बेसिकली।
तो जैसे यहाँ पर आपके यहाँ रामलीला होती है ना, वैसे वहां पर ये एंग्लो मणिपुर वॉर की ड्रामास होते हैं हर लोकेलिटी में। और प्रिंस टिकेंद्रजीत का जब फांसी होती है, आज तक लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। दूसरा मेन इवेंट यहाँ मणिपुर का है बर्मिज डिवास्टेशन। इसको कहते हैं चही तेरेत खुनताकपा। शहीद तरत कुंताप्पा मतलब 7 years डिवास्टेशन। ये हुआ बिटवीन 1819 एंड 1826, जब ये राजा मरजीत ये हार गए बर्मी से। और उसके बाद 7 साल तक बर्मा ने हम पर राज्य किया, और उस वक्त काफी काफी टॉर्चर किया, और जितने भी मेल पॉपुलेशन है उनको मार दिया। और मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो गंभीर सिंह जो राजा है, उन्होंने अंग्रेजों से मदद लेके फिर बर्मीज को हराया और उनको निकाला। पर उसके कारण से ये हुआ कि उसके बाद अंग्रेज आ गए वहां पर, एंड उन्होंने कहा कि अब मैंने तुमको मदद की है, अब हमारी मदद करो। और उसके बाद से फिर यू नो अंग्रेजों के अंडर मणिपुर आ गया। तो एनीवे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। और उस उसी इसी तरह से फिर जब ब्रिटिश चले गए, लास्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसी तरह से फिर मणिपुर इंडिया का हिस्सा बन गया अक्टूबर 15 1949 में। यूनियन टेरिटरी पहले बना 1950, बाद में बना 1956 में। उसके बाद स्टेट बना 1972 में। उसके बट हिस्टोरिकली जब उस 1956 से पहले ही 1947 में मणिपुर एक इंडिपेंडेंट वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था। राजा का रूल खत्म खुद किया था, मतलब फ्यूडलिज्म खुद खत्म किया था 1947 में। पर उसके बाद कहा जाता है कि जो किंग थे उनको हाउस अरेस्ट किया और शिलोंग में, और उनसे जबरदस्ती मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया साइन करवाया। और उसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी तक इन मणिपुर में, कि हम लोग इंडिपेंडेंट थे पर हमको जबरदस्ती इंडिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। इट्स अ डिबेट वन कैन डिस्कस, बट मैं यहाँ पर अभी खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देयर इज स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज ओपन योर कैमरास। आप सभी अपने कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए एक पिक्चर ले सके साथ में। हम्म, मेरे को तो कोई नजर नहीं। मीनवाइल आप सब, अगर आपके कोई क्या, क्वेश्चंस भी हैं पार्टिसिपेंट से तो आप पूछ कैसे सकते हैं मैम करते से। हैं? बाकी लोग कैसे दिखाई दें? कोटेश्वर प्लीज हेल्प मी। Grid view. Vijay Lakshmi, go for view and grid view. ओके, व्यू, वेयर व्यू? Yes. Choose a view which has grid. और गैलरी। Gallery, yes. कहाँ है? View में. इसमें तो नहीं है, कैमरा में नहीं। आप एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे व्यू होता है। स्ट्रीम राइट टॉप पे। मैम अगर आपने फोन से ज्वाइन किया तो आपको स्क्रीन स्लाइड करनी पड़ेगी, वैसे बाकी लैपटॉप्स में ऐसी भी होता है। हाँ, ये ना, ये तो नहीं है। हाँ। जूम में जाओ। हम्म। हाँ, ओके, हाँ, आई कैन सी नाउ। हाय एवरीबॉडी। हाँ, yes. तो अभी अच्छा लग रहा है, मुझे शुरू में ही करना चाहिए था ये। तो किसी का कोई हेलो क्वेश्चन है तो एवरीबॉडी, आप पूछ सकते सबकी हैं। शक्लें नजर आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। हेलो, कैसा लगा आपको मणिपुर के बारे में? मैम बहुत बढ़िया। मैम मेरे वो बहुत वहाँ पे, बढ़िया, बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे रिलेटिव भी रहते हैं मणिपुर में, मेरी बुआ अच्छा, रहती है। कहाँ? अच्छा, हाँ। कहाँ पर, और मार्केट में? पता नहीं, बट मणिपुर बताती हैं तो वहीं पे वो, बाकी मेरे भाई बहन भी रहते हैं वहाँ पे, मतलब बुआ के जो अच्छा, लड़के होते हैं और फूफा भी अच्छा, रहते हैं। तो आप तो काफी जानते होगे मणिपुर के बारे में। जानता हूँ, मतलब वही बताते हैं कि हाँ वहाँ पे थोड़ा सा बाहर वालों के साथ बड़ा वो करते हैं, नहीं, भेदभाव ऐसा करते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं सा है। दिक्कत है, बट हम्म। बाकी सब ठीक है, वहाँ के लोग ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। वहाँ के लोग अच्छे हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम, असल थैंक में मैम देयर इज अ, मणिपुर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, पता है? कि मेइतेज अपनी लोकेलिटी में रहेंगे, तांगपुज अपनी लोकेलिटी में रहेंगे, और हाँ जितने ये भी चीज है। जो तो मयांग्स हैं, हम लोग जैसे, इवन आई एम नॉट फ्रॉम मणिपुर, एज शी टोल्ड, आई एम द डॉटर इन लॉ। तो हम जो मयांग्स कहते हैं हम लोगों को, जो नॉन मणिपुरी होते हैं, वो लोग एक मार्केट एरिया में रहेंगे,
ऐसे तो इसलिए हम लोग आपस में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, ये अनफॉर्चुनेट बात है। मणिपुर में जोग्राफिकल कम्युनिटी ज्योग्राफी के अनुसार बटी हुई है। A very good evening to all of you. Ma'am, I have one question. If someone want to read further about the religion or indigenous culture, especially in the Northeast area, can you please suggest some books, ma'am? हाँ, या एक तो मेरी किताब है जो इंट्रोडक्शन में बोली थी, आप काफी उसमें इंडिजिनस मणिपुर के बारे में है। बट अदरवाइज हाँ, एक एक सना जाओबा है, उसका नाम है मणिपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। एन Wait, सना ma'am, Sana Joba. हाँ, एन सना Okay, ma'am. जाओबा। ही वॉज अ लॉ प्रोफेसर इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बट उसने 3 वॉल्यूम्स निकाले हैं मणिपुर पास्ट एंड प्रेजेंट के। और उसके बाद एक एन कीर्ति भी है, उन्होंने भी लिखा है काफी। देन खेल चंद्र है, खेल चंद्र, उनकी काफी किताबें हैं खेल चंद्र की, पंडित खेल Ma'am, चंद्र। ma'am, can you please repeat the name of your book? Actually, I माय बुक, forgot to write इट्स the कॉल्ड name. पॉलिटिक्स, सोसाइटी Yes, ma'am. एंड कॉस्मोलॉजी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। It's by Oxford University Press, 1998 publication. पर लिख लिया? Oxford Press, ma'am, 1998. हाँ जी। Or, ma'am, it was And politics, society, and cosmology, sociology and नहीं, politics, cosmology. society Ma'am. and cosmology in India's Yes, northeast. ma'am. पर एन सना जौबा का मणिपुर पास्ट एंड प्रेजेंट भी पढ़िए, बहुत अच्छी है, 3 वॉल्यूम्स हैं उसमें। Ma'am, there is a question in chat box. How can the present crisis in Manipur be resolved by Pradeep Malhotra, sir? हाँ, क्या क्वेश्चन है? I can't see the How question. can the How can the present present crisis in crisis? Manipur be resolved? Okay, Yes, so ma'am. the present crisis, the present crisis. Yes, Yes, yes. ma'am. अच्छा, जो अभी इसके बारे में तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे भी एज ए सोशियोलॉजिस्ट आई एम आल्सो रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, बिकॉज हिस्टोरिकली मेटीज एंड कुकीज कभी भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने लड़ाई की हो, कभी इनका कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो। तो बट ये कि जैसे ये लोग इनका कहा जाता है कि ये लोग न्यू माइग्रेंट्स हैं, ये लोग इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू मेटीज, ठीक है? तो ये लोग न्यू कुकीज कहा जाता है। तो ये हम लोग मैतीज और नागास कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। और ये लोग जब आ रहे हैं तो ये लोग एज आई टोल्ड यू कि ये लोग कहीं पर भी घर जमा विलेज बना लेते हैं। तो ये लोग जहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, वहां पर ये लोग पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं। और पॉपी कल्टीवेशन से इट्स अ वेरी, ऑलरेडी ड्रग्स से काफी मर रहा है मणिपुर। तो उसके वजह से, और देन लैंड ऐसे ले रहे हैं, मतलब कोई भी आके कहीं पर भी रह रहा है। तो ये जो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह की बात समझ में आती है फिलहाल तो। बट सिर्फ मतलब वहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रहा है और ये सब, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। आई एम सॉरी, आई कांट कमेंट। इसका Any other question? रिजॉल्व ऐसे होगा कि मतलब मतलब पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए आपस में। वो हो नहीं रहा, वो बिल्कुल हो नहीं रहा। यस, एनीबॉडी एल्स? I think there is no question. We can move forward. So it was a great session, ma'am, and we थैंक really हमको काफी नॉलेज मिला सेशन से। और नाउ लाइक टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल रिमार्क्स ऑफ दिस मीटिंग, हु इज सुप्रीम कोर्ट लॉयर बाय प्रोफेशन एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन। ओवर टू यू, मैम। Jyotika Kalra. She's यू Our अच्छा। president, ma'am. Yes, ma'am. By the way, I met Manjula. She knows you very well. Yeah, Manjula Batra. Yes. Oh, yes, yes. So, thank you very much, Vijay Lakshmi, Thank you. for joining from Srinagar. I mean, she has joined from Srinagar. So, Thank it you. was such a wonderful experience. I mean, you discussed Manipur ना आपने डिटेल में मणिपुर के बारे में बात करी, तो लग रहा था जैसे खुद मणिपुर में बैठे। और मेरा तो मणिपुर जाना हुआ भी 2-3 बार। और जी, लोकताल लेक के बारे में जो आपने बताया कि एशियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो मन कर रहा है कि एक बार फिर से मणिपुर जाएं और लोकताल चलते एक में साथ चलते हैं। एक चलो साथ ले चले।
और सब जो आज सबने ज्वाइन किया, इन सबको भी मेरा इनवाइट है कि हम एक बार लोकताल लेक देखने के बहाने मणिपुर चलें। और बिल्कुल म्यांमार से जुड़ा हुआ बॉर्डर, और म्यांमार के जुड़े हुए बॉर्डर की वजह से और वहां पर हो रही बहुत ज्यादा लॉलेसनेस की वजह से तो है ही। और मतलब जो बेसिकली, और वही जहाँ म्यांमार की बात आ रही थी, तो मुझे ऑन्ग सैन सू की बात आ रही Yeah. थी। जब उन्होंने इतना इतना मतलब आंदोलन किया था ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए म्यांमार में, वो सारा पलट गया और सारी की सारी शी हरसेल्फ अगेन इज नाउ इन कस्टडी। और दो नाम मणिपुर से बहुत बहुत पक्के से जुड़े हुए, एक मैरी कॉम जो कि ओलंपियन ओ, रही, ये तो मैं बताना ही भूल गई। यस, और ऑफ कोर्स। और मेंबर रही राज्यसभा की। और दूसरा जी। बहुत जो एक ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर होने के नाते जो मुझे एक ह्यूमन राइट का नाम ध्यान आता है, वो इरॉन शर्मिला का नाम, जिसने आपका के लिए पता नहीं कितनी लंबी एक 16 years, 16 years. 16 ईयर्स का जो फास्ट उन्होंने किया। और आगे मैं नहीं बढ़ रही। और आप सब ने सक्षम भारती फाउंडेशन, सक्षम रोजगार सोसाइटी, आप सभी ने ज्वाइन किया। मुझे बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, क्योंकि रात के इस समय हम ऐसी सीरियस बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। और सबको पर सेशन के बाद सबको लगता है कि हम जो इस सेशन से पहले थे और आज 1 घंटे के बाद हम उससे बेहतर हुए। तो वही एक मकसद भी है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, कि जो यूथ को हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, उसको स्किल की बात करते हैं, तो एकदम से जादू तो नहीं हो जाएगा। वो हम समझेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उस डायलॉग, उस कम्युनिकेशन और एक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हम कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you each one of you for Yeah, joining. I hope to be continuously in touch with all of you. Yes, yes, yes. We Uh, would love to mm. be. Yes. Yeah. Abhishek, Okay, then bye bye everybody. Bye bye just a Jyotika. minute. Bye bye Just a Abhishek. minute. Vijay, just a minute. There is a last vote of thanks. Abhishek. Okay, okay. Thank you, ma'am, for your remarks. Now I'd like to invite Omji for a word of thanks. Good evening, dear friends. I, Omji Gupta, on behalf of Saksham Rozgar Society, take the privileges of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our Office Secretary Abhishek for putting in so much effort in conducting this class. I also extend my thanks to Professor Vijay Lakshmi Barara for giving such a wonderful and information about Manipur. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalla, who, despite her very busy schedule, consistently attends class and is always concerned about enhancing the quality of the class. Wishing you all a very good night. Thank you. Thank you so Good much. night. Good night. So, yeah, Namaskar. we remain connected. Okay. Thank you so Thank you much. for joining our session, Thank and you. meet you in the next training session, which is going Thank you. to start in Jyotika, can you April. send me the YouTube link later on? Yes, yes, I will certainly. Thank you so much. Okay, bye bye. Come Bye. over to So you may all Srinagar. leave now. Good night, all of All you. of you come to Srinagar, I come. Yes, yes. Yes. Loktal and then Srinagar. First Srinagar Yeah, and nahi. then Loktal. Pehle Yeah. Srinagar. Pehle Yeah, Srinagar. pehle Srinagar. Then Loktal. Okay. Enjoy Okay. it, class. Okay. Really See you then.